From DAV Public School Dugdha, here to teach you online teaching subject accountancy chapter. Today I am going to start a new chapter, accounting for partnership fundamental. Listen carefully. This chapter, accounting for partnership fundamental, is very important chapter. It consists of 3 or 4 chapters are based on this chapter only. Means change in profit sharing ratio, admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner. All these chapters are based on accounting for partnership fundamentals. If you have a good command over this topic, this subject, you will be very good in these chapters. Okay, so try to understand accounting for partnership fundamental nicely. It will clear your all concepts like that. Okay, ठीक है. और ये जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिजोल्यूशन और अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल, इससे आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. और ये चैप्टर बेस है उन सभी चैप्टरों का, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिजोल्यूशन का. तो इस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, इसको अच्छी तरह से समझेंगे, इसके थ्योरेटिकल पार्ट को भी, प्रैक्टिकल पार्ट को भी, और फिर आगे आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से बना सकते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल try to understand the meaning of partnership. What is partnership? I think you have learned in class 11 what is partnership. It is same in 12 also. Partnership is what? It is defined by the Indian Partnership Act 1932 section 4. Best definition is there. Partnership is the relation. Listen, partnership is the relation between persons. पार्टनरशिप क्या होता है कि व्यक्तियों के बीच में रिलेशंस होता है. हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस. जो किसी बिजनेस का प्रॉफिट्स को या लॉसेस को बांटने के लिए बिजनेस को शुरू करते हैं. लास्ट वाले लाइन को आप ध्यान से समझेंगे. कैरिड ऑन बाय ऑल. See the definition, carried on by all. इसका ये मतलब होता है कि ये बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में सभी पार्टनर्स इस बिजनेस को कंडक्ट करेंगे. एवरी पार्टनर विल गिव द टाइम, विल एक्ट फॉर द बिजनेस. उसके बाद और देखिए डेफिनेशन में, और एनी ऑफ देम, या फिर उनमें से कोई एक पार्टनर, एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक पार्टनर काम करेंगे लेकिन वो सभी पार्टनर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. तो ये जो लास्ट लाइन है, कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी लोग उस बिजनेस को चलाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, कंडक्शन होगा उनका बिजनेस में एक्टिवली. और एनी ऑफ देम, या कोई एक, जैसे मान लिया जाए कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उसमें से पूरा बिजनेस का देख रेख सिर्फ सी करता है. तो इसका ये मतलब होता है कि सी जो भी काम करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ए भी होंगे और सी भी होंगे. ऐसा नहीं कि सिर्फ बी होंगे. इसलिए ऐसा कहा गया है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. अगर कोई एक आदमी भी काम करता है तो वो सभी आदमी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. और ये बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में. ठीक है. पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. In short, in simple language, we can say partnership is a type of business where 2 or more than 2 persons join the business, contribute capital, make an agreement, and share the profit and losses of the business. This is called partnership. In partnership business, more amount of capital and efficiency is obtained. That is why partnership business is started. Now let's have a discussion about the essential features or characteristics of business. This is very important point. Try to understand एक पार्टनरशिप बिजनेस का
क्या फीचर्स होता है, क्या उसका इसेंशियल फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, वेरी इजी, बाय द डेफिनेशन वी विल गेट, डेफिनेशन से ही मालूम चलता है, 2 or more persons, see for starting the partnership business at least 2 persons are required. If one person is there, it will be a sole proprietorship. So for starting the partnership business, we must have 2 persons. More persons, 2 or more persons. In partnership, there is a restrictions about the maximum number of the partners, and the maximum number is restricted to the 50 according to the new law of Indian Companies Act 50. Okay, next, agreement. Partnership business come into existence by making a agreement. पार्टनरशिप बिजनेस करने से पहले पार्टनर्स लोग, मान ले रहे ABC हैं, तो एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं कि इस बिजनेस को हम लोग कैसे चलाएंगे, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगा, इसका कंडक्शन क्या होगा, कैपिटल कितना कितना होगा। द एग्रीमेंट में बी रिटन और ओरल, ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनर्स एग्रीमेंट मस्ट बी इन द रिटन फॉर्म, जिसको हम लोग आगे में पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। नेक्स्ट फीचर है लॉफुल बिजनेस। सी व्हाट इज लॉफुल बिजनेस? ए बिजनेस विच इज अलाउड टू डू नॉट रेस्ट्रेंट फ्रॉम द आई ऑफ द गवर्नमेंट, जिस बिजनेस को आप कर सकते हैं, जिसको करने का आपको देश में इजाजत है, आप कर सकते हैं, जिसको लॉ रोकता नहीं है। जैसे अगर कोई 4 पार्टनर मिल जाए, अगर वो बोलते हैं कि हम गन फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, तो गन फैक्ट्री स्टार्ट करना इन द आई ऑफ लॉ इज नॉट अलाउड, इट इज प्रोहिबिटेड। सो बिजनेस मस्ट बी लॉफुल, कानून उसको मानता हो, कानून उस बिजनेस को करने का इजाजत देता हो, नहीं तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं करेंगे जिसको कानून करने से मना करता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से it has been observed in partnership business in the beginning there is very good